جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے، یہ دعوت اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے۔ اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے۔ اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ، جی شفیق بھائی وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے، تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں۔ ابے پوچھ لیا اگر یار خدا کے واسطے، اب اس کے برعکس لے لو، گارڈ نے آئے گا سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000۔ کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ ابے پاگل اندر لاؤ یار، تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار، یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب ایسے ہیں۔ شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا، یہ ہم سب ایسے ہیں، لینا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں، اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں، بیچارہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی میری بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں، یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا، ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، یار میرا نہیں دل کر رہا، یار میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے، بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں، سب ایسے ہیں، کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں، کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا۔ ہر انسان ایسا، ہر انسان کو خلوت چاہیے، ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے، ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی۔ دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے۔ انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی، انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے، ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں، اور ہم نہیں دیکھتے۔ ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، کتنی بار ہم نے یہ بات سنی؟ تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں، اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں، ام سلمہ کے پاس بیٹھیں، جا کر حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں، دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے بات سنیں، تھوڑی سن کے بھی سنیں، اپنا دل بہلائے نہیں کرتا ہوگا، دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا۔ لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ ہم نہیں دیتے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ لوگ دے دیتے ہیں، یہ سیاسی لوگ۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے، اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے۔ تو سیاست ہے لوگوں سے لینا، دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست۔ جب کبھی گشت پہ نکلو، میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی، جب کبھی گشت پہ نکلو، گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کرو، اپنی دعائیں کرو اللہ سے۔ وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاہ جائیں، کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں، گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں کہاں، آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے۔ اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے، بچہ دین کا داعی ہے۔ آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا، رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں، بڑی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو اب آئے دونوں، اب دعوت دیکھو کیسی ہے، یہ کیسی دعوت چل رہی ہے، واہ سبحان اللہ، کیا دعوت چل رہی ہے۔ چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کون صحیح کر رہا ہے؟ اب ان دونوں کے سامنے، ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں، تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، ان بچوں کی نہیں ہے، تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا،
प्यार किया और कहा तुम ही इस लायक थे कि नबूवत के खानदान में पैदा होते, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी थी, और किस खूबसूरती से मेरी इस्लाह की है। बच्चा बच्चा दाई है दीन का इस उम्मत का। इस उम्मत की हर औरत दाइया है, इस उम्मत की हर औरत दाइया है। घर नहीं चल सकता औरत के बगैर, नो वे, घर नहीं चल सकता औरत के बगैर। हाँ, बड़े से बड़ा तुर्रम खान, उसकी बीवी उससे नाराज हो जाए, उसकी जिंदगी हराम हो जाती है। बीवी को ठीक रखना, सीधा रखना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। हाँ बिल्कुल, मैं तो उस तबलीगी को तबलीगी नहीं मानता बिल्कुल भी, बल्कि मेरा दिल खट्टा हो जाता है उस साथी से मिलकर के जिसकी घरवाली उससे नाराज चल रही हो। मैं कहता हूं यार तू क्या आदमी है यार, एक औरत नहीं संभलती तेरे से। हाँ, क्यों तू सारे आलम का तू क्या करेगा, तू क्या करने निकल रहा है बाहर। हाँ? एक औरत संभल नहीं रही हो, तू सारे आलम की फिक्र में निकल रहा है। हाँ? तो घर चलता है औरत के होने से, घर चलता है औरत के होने से। हाँ, सबसे बड़ा, मैं कहता हूं सबसे बाअखलाक, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, सबसे बड़ा बाअखलाक वो है कि जिसके घर वाले उससे खुश हैं। सुभान अल्लाह। और आप फरमा रहे हैं तुम सब में सबसे ज्यादा बाअखलाक मैं हूं, क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे तुम सबसे ज्यादा खुश हैं। कमोबेश अल्फाज है। हाँ, देखो तो सही, किसी ने पूछा हजरत हिंद बिन नबी हाला से, ये हजरत हसन और हुसैन के मामू हैं, उनसे पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, तो फरमाया एक गम की हालत में बैठे रहते थे मस्जिद के अंदर, एक गम की हालत में बैठे रहते थे मस्जिद में। हाँ, यही सवाल किसी ने अम्मा आयशा से भी कर लिया, कैसे थे, फरमाया हर वक्त हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, हमसे मजाक करते रहते थे। हाँ, घर के काम कर दिया करते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम में से कौन चाहता है, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि घरवाली के किस्से हमारे और मेरे और मेरी घरवाली के किस्से लोगों को पता चले, कोई नहीं चाहता। लेकिन मेरे रब ने हमारे नबी की खानगी जिंदगी को भी छुपा के नहीं रखा, बल्कि हम तक पहुंचा दिया। 9 के 9 घरों की जिंदगी को पहुंचा दिया हम तक। हाँ, सबसे पहला काम करो भाई, सबसे पहला काम करो, अपनी बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरो। हाँ, 4 मौके हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराते हैं, 4 मौकों पर अल्लाह मुस्कुराते हैं। वाह, एक उस पर जब अल्लाह का बंदा आसमान को देखकर कहता है अल्लाह मग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुस्कुरा उठते हैं। दूसरा मौका जब अरफा में लोग जमा होते हैं, हाँ, और हाजी अरफा में घूम रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को, हाजी अपने मेहमानों को, अपने ज़ुयूफ को देखकर मुस्कुराते हैं। तीसरी मर्तबा कब मुस्कुराते हैं, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, अल्लाह मुस्कुरा उठते हैं। हाँ, चौथी मर्तबा जब बीवी शौहर के चेहरे पर छींटा मारे और शौहर बीवी के चेहरे पर छींटा मारकर उसको तहज्जुद के लिए उठाए, बोतल नहीं उंडेलनी, हाँ, छींटा मारना है, हाँ, छींटा मार के उठाए, इस पर अल्लाह मुस्कुरा उठते। 4 बातें। सबसे कीमती रिश्ता इस माशरे का मियां बीवी की जिंदगी। आज इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नारा क्यों नहीं लगता, एक वजह है बस, बहुत बड़ी वजह, और वो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इस वजह से इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नारा नहीं लगता। उस मुल्क में हर वक्त रोते रहते हैं रिज्क की तंगी। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र, शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है, तू खाएगा कहां से, सबसे बड़ा हथियार यइदुकुमुल फ़क्र। और जब वो इंसान को फकर के खौफ में मुब्तला कर देता है, तो उसके बाद शैतान के लिए इंसान से हर किस्म की बेहयाई करवाना आसान हो जाता है। कुरान कह रहा है। तो वहां क्या है, सबसे पहले उनको, बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। मियां बीवी का ताल्लुक इस बुनियाद पे है कि तू भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूं, इस बुनियाद पर तब हम बिल्स पे करेंगे। अगर तूने मुझे छोड़ा, अगर तू नौकरी से गया, तो भाई सामान उठा के घर से भी निकल जाना, रिश्ता खत्म। तो रिश्ते की बुनियाद क्या है, पैसा। पैसा रिश्ते की बुनियाद है, जब तक दोनों नौकरी पे चल रहे हैं। क्यों, हर चीज तो सूद से खरीदी हुई है, हर चीज पर सूद दे रहे हैं, बाल बाल सूद में अटका हुआ है, एक चीज सूद पर है, एक चीज सूद पर है। यहां क्यों बचे हुए हैं हम, यहां इसलिए बचे हुए हैं कि मियां बीवी साथ हैं,
मुआशरा, अल्लाह, रसूल सब की बुनियाद पर बीवी औरत मर्द को बर्दाश्त कर रही, मर्द बीवी को बर्दाश्त कर रहा, बच्चे हैं बच्चों की वजह से साथ हैं और वजूहात की वजह से, खानदान की वजह से साथ हैं, साथ चल रहे हैं। अब जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो बाप की दिल से ये ख्वाहिश होती है कि मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे साथ ही रहे, जो जगह घर में थोड़ी बहुत जगह उसमें रहे, मेरे साथ ही रहे। चलो भाई अभी काम नहीं कर रहा, कर लेगा, 6 महीने बाद मिल जाएगी नौकरी, छोड़ के ना जाए मुझे। तो खानदान इंटैक्ट है। वालिद की उम्र बड़ी हो गई, वालिदैन की उम्र बड़ी हो गई, अब बच्चे की ख्वाहिश है मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ कर लूं इनके लिए। उस लेवल का तो नहीं हो सकता जिस लेवल का वालिदैन ने किया, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी ने जाके अल्लाह के नबी से अर्ज की, या रसूलल्लाह, जैसे मेरी माँ मुझको नहलाती थी, आज मैं भी अपनी माँ को नहला रहा हूं, क्या मैंने वो हक अदा कर दिया? क्या जवाब दिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया, हाय हाय, जब वो तुझको नहलाती थी ना तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, आज तू उसको नहला रहा है तो उसके मरने की तमन्ना कर रहा है, तूने कहां से उसकी बराबरी कर दी? हाँ मेरे दोस्त, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन अभी तक जिंदा है, खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है। बाप के और बेटे के बीच में रिश्ता इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, इसीलिए जिस बेटे ने अपने बाप को राजी रखा, हाँ, तो जो दुआ बाप के दिल से निकलती है, जुबान से नहीं, बाप तो देता ही रहता है जुबान से दुआ, हाँ, जो बाप की जो दुआ उसके दिल से निकलती है, उसके और अल्लाह के बीच में एक भी हिजाब नहीं होता। जो दुआ बाप अपने बेटे के लिए करता, मां के लिए तो करते ही हैं, बेटे तो मां के हो ही जाते हैं। अजीब, मैं हैरान होता हूं कि मां के बारे में नहीं फरमाई ये बात, बाप के बारे में फरमाई। हाँ, अरे यार डैडी आपको क्या पता, बाबा आपको क्या पता, अरे डैडी वो दिन गए, उफ यार उस बाप को देखो तो सही, जरा एक मर्तबा देखते रहो, उसको देखते रहो, ये ना होता तो तू भी ना होता। हाँ, आज उसको कह रहे हो, आज उसको कह रहे हो ये बात, अजीब। हाँ, अल्लाह इस बोल से हिफाजत फरमाए। हाँ मेरे दोस्त, कोई बोल ऐसा बाप को ना बोलना, कोई बोल ऐसा माँ को ना बोलना। माँ तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ, बाप के सामने नहीं बोलना। बदनसीब है वो जो बाप के सामने बोलता है। उस्ताद के सामने मत बोलना, उस्ताद के सामने मत बोलना, बाप के दोस्तों के सामने मत बोलना। हमारे ऊपर 4 रिश्ते फौरन मुतवज्जे रहते हैं, हम सब पे, हम सब मर्दों पर 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। सबसे पहले बाप का, फिर उस्ताद का, फिर ससुर का, फिर बाप के दोस्तों का। ये 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। उतने ही ताकतवर और पावरफुल रिश्ते हैं ये। इन चारों में से किसी एक की दुआ बिल्कुल वही ताकत रखती है जो बाप की दुआ ताकत रखती है। बाप के किसी दोस्त ने दुआ दे दी बेटा आपको, देखो मैंने क्या करना है बाप के दोस्त का, बाप चला गया मैं क्या करना है, लेकिन वो बात, बाप के दोस्त को वो बात याद है कि मैं आया करता था इस घर में, छोटा सा था, इसको गोद में बिठाता था, मेरा दोस्त था, आज मेरा दोस्त चला गया, आज ये मुझे नहीं पूछ रहा। हालांकि इस बात का एहसास मुझे नहीं हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अब अब्बा नहीं है तो चलो अब दोस्तों का मैं क्या करूं, उनके दोस्तों का। हाँ, कैसा अजीब दीन है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आया ही करते थे इस घर में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, तुमसे प्यार करते थे, मिलते थे, तुम्हें टॉफीज देते थे, कुछ करते थे, ठीक है। आज वो इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि जितनी इज्जत इसका बाप मेरा दोस्त किया करता था, काश इसका बेटा भी मेरी इतनी इज्जत करे, इस घर में मुझे उतना ही वेलकम करे। इसलिए अल्लाह ने ये 4 रिश्ते हमारे साथ मौत तक के लिए जुड़े हैं। हाँ, तो ये कदरें जिंदा हैं अभी इस मुल्क में, इसलिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट के नारे नहीं लगते, ये कदरें जिंदा हैं। ये बाहर नहीं देखने को मिलती। आप यकीन करो, जिस वहां भागने की आप तमन्ना करते हो, वहां आदमी आपके मुंह के सामने बैठकर खाएगा और आपसे नहीं पूछेगा। कैसी अजीब बात है। यकीन आ रहा है आपको इस बात का कि आप बैठकर खाएं, आपके सामने एक दोस्त बैठा है, साथी बैठा है, और आप उसको ऑफर भी ना करें। वहां तो ये कदरें मर चुकी हैं। वो सोसाइटी दूसरी बुनियादों पर जिंदा है, वो बुनियादें दूसरी हैं उनकी, वो इज्तमाई बुनियादें हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को खिलाफत अता फरमाते हैं। उन्होंने उन बुनियादों को जिंदा रखा है, उन्होंने अदल को जिंदा रखा है, वहां अदल होता है इस वजह से। और अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। अदल होता है, उस मुआशरे में बदमामलगी नहीं होती, वहां ताजर दूसरे ताजर को धोखा नहीं देता,